ترکیبی اذیت کے حصے میں داخل ہوں، جس کا اندرونیہ صبح 9 سے شام 3 بجے تک تھا، جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے اور جس کو عبرانی میں گلگتہ کا مقام ہی کہا جاتا ہے۔ صلیب پر خدا یسوع مسیح کی زبان سے جو آخری 7 جملے نکلے تھے، جو تمام اذیتوں کے وقت میں جو تمام مسیحیوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ عزیزوں، خدا یسوع مسیح کی زبان سے صادر ہونے والا ایک ایک لفظ بیش بہار موتیوں کی طرح بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک کلمہ معافی کا ہے تو دوسرا محبت کا، اور اگر ایک محبت کا ہے تو دوسرا نجات کا۔ اسی طرح یہ سلسلہ 6 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں کچھ کلمات میں وقفہ ہے اور کچھ کلمات میں وقفہ نہیں تھا۔ تو آئے ہم ان 7 کلمات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور 7 بہن بھائیوں کے وسیلہ سے 7 کلمات کو جانتے ہیں۔ تو آئیں اب میں دعوت دوں گی بائبل کلاس کی اسٹوڈنٹ بہن کو، جنہوں نے پہلا کلمہ تیار کیا ہے۔ وہ آئیں گی اور پہلے کلمے کی وضاحت کریں گی۔ آپ سب کی بھرپور تعریفوں میں۔ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آپ پر بھی ہو۔ سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع بخشا تاکہ میں پہلے کلمے کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو آئے جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی انجیل 23 باب 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ اس سے پہلے ہم کلمے کے حقیقی متن کو سمجھے، ہم کلمے کے ٹائم کو جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ کب اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمایا۔ مقدس مرقس کی انجیل 15 باب 25 آیت۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مسلوب کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزوں، انگریزی بائبل ترجمے کے مطابق پہر دن کے بج جانے سے تیسرا گھنٹہ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے پہلے پہر کا تیسرا گھنٹہ گزر رہا تھا۔ یہودیوں کے دستور کے مطابق دن کے 8 پہر ہوتے تھے اور ہر پہر میں 3 گھنٹے ہوتے تھے۔ پہلا پہر طلوع آفتاب صبح 6 بجے سے 9 بجے تک تھا۔ چنانچہ 9 بجے کا وقت تھا۔ ابھی یسوع مسیح کو مصلوب ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمایا۔ اب ہم کلمے کی نوعیت کو جانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں بیٹے کا حق استعمال کیا۔ بیٹے کی حیثیت سے انہوں نے باپ سے سفارشی دعا کی۔ مقدس پطرس کے لیے اس سے پہلے انہوں نے باپ میں مقدس پطرس کے لیے سفارشی دعا کی کہ اس کا ایمان نہ جاتا رہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 22 باب 31 اور 32 آیت کے مطابق، اور تمام شاگردوں اور آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے بھی سفارشی دعا کی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 22 باب 9، 10، 15 اور 20 آیت کے مطابق، شفاعت کا کام کرنے والا درمیانی کہلاتا ہے کیونکہ خدا ایک ہے۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اب ہم کلمے کے اطلاق کو جانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ مقدس متی کی انجیل 5 باب 44 آیت کے مطابق یسوع نے کہا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خداوند یسوع مسیح
सलीब पर अपनी अमले तलीम का सबूत दे रहा था। खुदावंद यीशु मसीह के कलमे में माफ़ी की वजह भी बयान की गई है। उन्होंने कहा, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब हम कलमे के इखलाकी सबक को जानेंगे। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने सिफारिशी दुआ सिर्फ मसलूब करने वालों के लिए की, लेकिन वो हम सब के लिए हुआ, हम सब के गुनाह उठा लिए और हम सब का कफारा दिया। इसलिए वो बाप से हम सब की सिफारिश करते हैं कि वो सब के गुनाह माफ़ करे और सब निजात पाए, क्योंकि गुनाह की माफ़ी का इंतज़ार हो चुका है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा ज़िंदगी के नमूना को अमली जहाँ पहनाना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ दुआ से शुरू किया। मुक़द्दस लूका की अंजील 3 बाब 21 आयत के मुताबिक, और सलीब पर ख़त्म भी दुआ ही से किया। खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ में गुजारा करते थे। मुक़द्दस लूका की अंजील 6 बाब 12 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करके अपने उस्ताद होने का सबूत दिया। खुदावंद मुझे और आप सबको इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, हमने पहले कलमे के बारे में बहन से बड़ी अच्छी तरह से जाना है, तो आए अब मैं दावत दूंगी बाइबल क्लास के स्टूडेंट भाई को जिन्होंने दूसरा कलमा तैयार किया है। वो आएंगे और दूसरे कलमे की वजाहत करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सबका सलामती हो। उससे पहले सिस्टर ने पहले कलमे को बयान किया और खुदावंद ने मुझे भी मौका बख्शा कि मैं आपके सामने दूसरे कलमे को बयान करूं। तो आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले मुक़द्दस लूका की अंजील 23 बाब 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाए और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। इससे पहले कि हम दूसरे कलमे के हकीकी मतन को समझें, पहले हम टाइम को जानेंगे कि दूसरा कलमा कब खुदावंद यीशु की ज़बान से सादित हुआ। खुदावंद मसीह ने इस दूसरे कलमे में खुदावंद मसीह को सलीब पर दूसरे पहर में से गुजर रहे थे, जो 9 से 12 बजे तक था। यह नहायत जानकीनी का वक्त था। खुदावंद मसीह सलीब पर लटके तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। यह दूसरा कलमा दोनों डाकुओं से गुफ्तगू के दौरान कहा गया था, जिसका वक्त तकरीबन 11 बजे था। अब हम कलमे के पस मंज़र को समझेंगे। मसीह और दोनों डाकुओं को मसलूब हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। पहले कलमे के बाद सलीब पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो लोग खड़े देख रहे थे वो मसीह पर लानतान कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि मसीह की रूह कहाँ गई। खुदावंद मसीह ने इस दूसरे कलमे में फरमाया कि मैं आज ही रात फिरदौस में होगा। लफ्ज़ आज ये जाहिर करता है कि ये वाक़या कल या परसों या चंद दिनों के बाद वाक़या नहीं होगा, बल्कि सूरज डूब होने के बाद आज ही रात होगा। दूसरी ये बात भी जाहिर है कि जब मसीह मरने के बाद कहीं जाएगा तो वह जिस्म में नहीं जाएगा, क्योंकि मरा हुआ जिस्म तो कब्र में रह जाएगा। अब हम जानेंगे कि इस कलमे से क्या सबक मिलता है। इस डाकुओं ने खुदा के इंसाफ को कबूल किया कि वह अपने गुनाहों की सज़ा पा रहा है। यह उसके नादम और शर्मसार होने की अलामत है। हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के फैसलों को कबूल करें। अगर हम अपनी तकलीफ़ों, मुसीबतों, बीमारियों और सब दुखों पर शिकायत करते रहें और खुदावंद को इल्ज़ाम देते रहें तो ये पछतावे की निशानी नहीं। हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के फैसलों को कबूल करें। खुदा मुझे और आप सबको इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे।
ने दूसरे कलमे के बारे में भाई से बड़ी अच्छी तरह से जाना है। तो आए इससे पहले कि हम तीसरे कलमे की तरफ आगे बढ़ें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और मैं दरख्वास्त है बहन मैरी से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। बेटा खुदा के नाम से आमीन। खुदा बाप तुम्हारे इस दोपहर की दुआ को सुन और कबूल कर। मैं सच्चे दिल से पुकारती हूँ, सजदा करती हूँ, सजदे का लायक तू है। वहाँ मेरे दिल की खुदा को माफ़ कर, माफ़ करने वाला खुदा है। वहाँ मेरे गले को चूम, मेरी ज़ुबान को चूम, होठों का संभाले ताकि हम तेरी तारीफ करें। और बाप का एकदम खुदा तेरे कलाम मिलकर जान दो या तुम्हें नाम से जो मोहम्मद के दरमियान में मौजूद है। खुदा तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। और बाप का एकदम खुदा जैसे तूने मुझसे तेरी अपने जैसे काम इसे तुम्हारे अपने कलाम पर नक्श लगाया हुआ बाप खुदा एकदम खुदा जैसे तो बहन भाइयों ने कल में बयान किया हुआ बाप खुदा एकदम खुदा अब जो बहन भाई दूसरे कलमात तैयार हुए हो बाप खुदा एकदम खुदा को लफ्ज़ों की तरतीब देना, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा अता फरमाना हो बाप खुदा एकदम खुदा उनके बोलने के वसीला से लोग निजात पाए, शिफा पाए, बहाली पाए और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सके हो बाप खुदा एकदम खुदा शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी हिफाजत करने के बाद का नाम आपके उसी के नाम से। अब मैं दावत दूंगी बाइबल क्लास के स्टूडेंट बहन को जिन्होंने तीसरा कलमा तैयार किया है। वो आएंगी और तीसरे कलमे की वजाहत करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। मुझसे पहले दो बहन भाइयों ने कलमे बयान किए और खुदावंद ने मुझे भी मौका दिया ताकि मैं आपके सामने तीसरा कलमा बयान कर सकूं। तो आज जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 19:26 आए। यीशु ने अपनी माँ और उस शिगिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, यह औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शिगिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जानकर हम सबको बरकत मिले। इससे पहले कि हम तीसरे कलमे के हकीकी मतन को समझें, हम पहले टाइम को जानेंगे कि तीसरा कलमा कब खुदाम यीशु की ज़ुबान से सादिर हुआ। अगर हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील 27:45 आयत हमें बताती है कि 12 बजे से तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और हमने दूसरे कलमे के मुतालिया में देखा है कि 11 बजे के करीब खुदा मसीह की गुफ्तगू दो डाकुओं से हुई थी। लिहाजा इस कलमे का वक्त तरीकी छा जाने से थोड़ी देर पहले यानी तकरीबन 11:30 बजे थे। अजीज़ा, अगर हम कलमे के नियत को जाने तो लिखा है, ये कलमा खानदानी फ़र्ज को पूरा करने के लिए बोला गया है। ये कलमा बाप से सिफारिशी दुआ नहीं और ना ही किसी के सवाल का जवाब है, बल्कि एक गमज़दा माँ का एहतमाम है जिसमें माँ की जिम्मेदारी एक शगीर्द को सौंपी गई ताकि वो उसकी देखभाल करे। बस हम मसीह के पास सिर्फ अपनी गर्ज पूरी करने और अपना काम कराने के लिए ना आए बल्कि ज़िंदगी पाने के लिए आए। बाज़ लोग ये भी बोलते हैं कि खुदा यीशु ने औरत कहा। याद रखें, माँ मरियम लफ्ज़ औरत जो इस्तेमाल किया गया है उर्दू तर्जुमे में इसका इब्रानी मतलब मोहतरमा यानी इज़्ज़तदार खातून। इस कलमे से जो हमें सबक हासिल होता है वो ये है कि खुदा यीशु ने सलीब पर जानकुनी की हालत में ये ज़रूरी समझा कि माँ के सहारे का एहतमाम किया जाए। लिहाजा पूरे वालिदैन की देखभाल करना औलाद पर फ़र्ज़ है, खुसूसन जब वो बेसहारा और बेयारो मददगार है। याद रहे, ये कलमा माँ बाप यानी खूनी रिश्तों से मोहब्बत का फ़र्ज़ है। खुदा मुझे और आप सबको इस सच्चाई के कलम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, अभी हमने बहन से तीसरे कलमे के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जाना है। तो आए अब मैं दावत दूंगी बाइबल क्लास के स्टूडेंट भाई को जिन्होंने चौथा कलमा तैयार किया है।
वो आएंगे और चौथे कलमे की वजाहत करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। मुझसे पहले 3 बहन भाइयों ने कलमे बयान किए और खुदा ने मुझे भी मौका बख्शा कि मैं आपके सामने चौथा कलमा बयान कर सकूं। आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती की अंजील 27 बाब 46। और तीसरे पहर देखते ही यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। इससे पहले कि हम कलमे के हकीकी मतलब को समझे, पहले हम टाइम को जानेंगे। फिर चौथा कलमा कब खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से साबित हुआ। अजीजों, इस कलमे का वक्त इसी आयत में दिया गया है कि मसीह ने यह कलमा तीसरे पहर के करीब बोला था। दोपहर 12 बजे से 3 बजे शाम तक था। हकीकत में आखिरी चारों कलमे तीसरे पहर बोले थे जब तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। चुनाचा ये कलमा तकरीबन 2:30 बजे के दरमियान बोला गया होगा। अब हम जानेंगे कलमे के मज़मून को। मसीह के इस कलमे से जाहिर होता है कि खुदा ने इसे छोड़ दिया है। बस मसीह खुदा से सवाल करता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले ये देखना है कि छोड़ देने का क्या मतलब है, और छोड़ देने से मुराद अलग हो जाना, मुंह मोड़ लेना, रफाकत टूट जाना, अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। अजीज़ों, बाप और बेटे में कभी अलहदगी नहीं हुई। मसीह ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं। आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 10 बाब और 29 आयत में यूँ लिखा है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। आमीन। वो अज़ल से एक है और इकट्ठे हैं और कभी जुदा नहीं हुए। अब हम जानेंगे कि हमको इस कलमे से क्या सबक मिलता है। अजीज़ों, इस कलमे की सबसे अहम बात यह है कि मसीह ने हम सब के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और बाप ने प्यार एक तरफ रख कर बेटे की अदालत की और उसे मौत की सजा दी। खुदा के इस नजात के इंतज़ाम का सिर्फ उस वक्त फ़ायदा होता है जब उस पर ईमान ला कर दिल से कबूल किया जाए, क्योंकि लिखा है, इस खुदा ने ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो। आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल के रोमियो 3 बाब 25 आयत। इस खुदा ने इसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह बेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके सलाह दी थी इनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावंद हम सबको इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। अजीजों, अभी हमने भाई से चौथे कलमे के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जाना है। तो इससे पहले कि हम 5वें कलमे की तरफ आगे बढ़ें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और मेरी दरख्वास्त है सिस्टर इकबा से कि वो सामने आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। जो कुछ करते वो सब खुदा यीशु के नाम से करो। तो अभी से यहोवा पाक खुदा हमने इस इबादत का आगाज़ तेरे नाम से शुरू किया है। यहोवा पाक खुदा ऐ खुदावंद को शुरू से आखिर तक बड़ी फाज़िल निगहबानी करना। यहोवा पाक खुदा ऐ खुदावंद मैं तेरे शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने प्रस्तिश में बड़ी फाज़िल निगहबानी की और
जो तूने अपनी ज़ुबान मुबारक से आयतों को बयान किया है पाक खुदा, और उनके लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा। और जितने कलमे हो गए पाक खुदा जो तूने अपनी ज़ुबान मुबारक से सलीब पर हमारी खातिर बोले, उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हुई हो पाक खुदा। और जितने बहन भाइयों ने हो पाक खुदा अब कलमों को बयान करना है, तो उनके भी साथ साथ चली हो पाक खुदा, उनको लफ्ज़ों की तरतीब दे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके हो पाक खुदा, और उनके बोलने का जिम्मा ले हो पाक खुदा, और उनके बोलने के वसीला से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो सके हो पाक खुदा, लोग निजात पाए, शिफा पाए, बहाली पाए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो सके हो पाक खुदा। शुरू से मैं दावत दूंगी बाइबल क्लास के स्टूडेंट भाई को जिन्होंने 5वां कलमा तैयार किया है। वो आएंगे और 5वें कलमे की वजाहत करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। उससे पहले 4 बहन भाइयों ने कलमे तैयार किए और खुदावन ने मुझे भी मौका दिया कि मैं आप सब के सामने 5वें कलमे को बयान करूँ। आज हम बाइबल मुकद्दस से देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बंद। इससे पहले हम कलमे के हकीकी मतलब को समझे, पहले हम टाइम को जानेंगे कि 5वां कलमा कब खुदाम यीशु की जुबान से साबित हुआ। तकरीबन 2:30 बजे जब तक मामलूक में अंधेरा छाया हुआ था। अब हम जानेंगे कलमे की नौबियत। इस कलमे में मसीह ने बदन के एक ज़रूरत का इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। अजीज़ों, ये पानी मांगने की अपील या दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि हकीकत का बयान था। मसीह में जिस्म खुदा था। वो एक तरफ कामिल खुदा था तो दूसरी तरफ कामिल इंसान भी था। सब इंसानों की तरह गम, खुशी, आराम, नींद, थकन सब बातें पेश आती थी कि इंसान होते हुए वो सलीब पर प्यासा हुआ। ये कलमा खास मसीह की इंसानी से ताल्लुक़ रखता था। अपनी ऐसी कुदरत इस्तेमाल करके पानी मुहैया कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। जब आदमी के बदन में पानी की कमी आ जाती है तो वो प्यास महसूस करता है। खुदावंद मसीह का आखिरी खाना गुज़िश्ता शाम को बाला खाना में ईद फसह मनाते वक्त खाया था। इस वक्त से तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके थे। इस अरसा में मसीह ने कुछ नहीं खाया पिया। अब हम जानेंगे मसीह की प्यास क्या है। मसीह की प्यास से मुराद ये है कि मसीह क्या चाहता है। अगर कलाम पढ़ते वक्त हमें ऐसी आयात या ऐसा ख्याल मिल जाए जो हमें बताए मसीह या खुदा क्या चाहता है, तो वह मसीह की प्यास है। हमने देखा तस्वीर पर मसीह की ख्वाहिश थी कि तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हों, इसकी प्यास थी। आज हम बाइबल मुकद्दस से देखते हैं 2 पतरस 3 बाब और उसकी 9 आयत। ये किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें लूका 3 बाब और उसकी 40, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की तो आप जरूर हलाक होंगे, लेकिन दम की प्यास ये है कि अपने सारे गुनाहों की माफ़ी पाएँ और बच जाएँ। खुदा हमें इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की। अजीजों, अभी हमने भाई से 5वें कलमे के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जाना है। तो आए अब मैं दावत दूंगी बाइबल क्लास के स्टूडेंट बहन को जिन्होंने 6ठा कलमा तैयार किया है। वो आएंगी और 6ठे कलमे की वजाहत करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में। बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। मुझसे पहले 5 बहन भाइयों ने कलमों को बयान किया।
اور خدا نے مجھے بھی موقع دیا کہ چھٹے کلمے کو بیان کر سکوں۔ آج جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں یوحنا 19:30 آئے۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ اس سے پہلے کہ ہم چھٹے کلمے کی حقیقی متن کو سمجھیں، پہلے ہم ٹائم کو جانیں گے کہ چھٹا کلمہ کب خداوند یسوع کی زبان سے صادر ہوا۔ یہ 3 بجے شام کا وقت ہے اور تاریکی کے 3 گھنٹے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ کلمہ کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بیان یا اطلاع کے طور پر بولا گیا ہے۔ یہ کلمہ فتح کا نعرہ ہے۔ خداوند مسیح کے شیطان کے گھر اور اس کی حکومت میں آ کر اس سے جنگ کی اور اسے شکست دی۔ لوگ اس نعرے کو نہیں سمجھے، لیکن شیطان جانتا تھا کہ تمام ہوا کا نعرہ لگنے سے پہلے کتنی زبردست جنگ ہوئی۔ چھٹا کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ کلمے کا عدد 6 ہے، جو انسان کا عدد ہے۔ آدم چھٹے دن پیدا کیا گیا۔ پہلا آدم شیطان سے شکست کھا گیا اور گناہگار بن گیا، جس کے اس وقت سے موت آ گئی۔ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ چنانچہ پہلے آدم کے گرنے سے کئی قسم کا نقصان ہو گیا، جو یہاں تفصیل سے نہیں لکھا جا سکتا۔ خدا نے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے خداوند مسیح کو بھیجا، تو جو دوسرا آدم تھا اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ لکھا ہے پہلا آدم خاکی تھا، دوسرا آدم آسمانی تھا۔ پہلا آدمی زندہ نفس بنا، لیکن دوسرا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پہلے آدم میں سب مر گئے، لیکن دوسرے آدم میں سب زندہ ہوتے ہیں۔ دونوں آدمیوں میں فرق گرنتھیوں میں لکھا ہے۔ پہلا گرنتھیوں 15:21-22-45-46۔ پہلا آدم گناہ اور لعنت کا موجب بنا، لیکن دوسرا آدم گناہ کی قربانی دینے کے لیے خدا کا بڑا بنا اور صلیب پر گناہ کا کفارہ دے کر نجات دہندہ بنا۔ پہلا آدم شیطان گناہ اور موت سے شکست کھا گیا، لیکن دوسرے آدم نے ان سب پر فتح پائی۔ یہ دوسرے آدم نے پہلے آدم کے سارے نقصان کا ازالہ کیا۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے ابن آدم آیا، جس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ ابلیس کو شکست ہوئی تھی، اس لیے بولا تمام ہوا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس سچائی کے کام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ God bless you۔ عزیزو، ابھی ہم نے بہن سے چھٹے کلمے کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم 7ویں کلمے کی طرف آگے بڑھیں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے، اور میری درخواست ہے بھائی اشرف سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ آج کی دوپہر تک زندگی میں بخشی ہے، تاکہ ہم تیرا حضور یہ ذکر اور تجھے صدا کریں۔ ہر وقت تیرے کلام میں لکھا اور گانا کلام جو کچھ کرتے ہیں وہ سب خدا کے اصل نام کو کرے۔ جس سے تیرے کلام کا ہے اس روح سے میں سنے اور دوسرے کافی نکال دے، بلکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والا تیرے پرستش ہوگی۔ ہم تیرا شکر گزار ہیں۔ تعلق جب بیان والے میں کرنے بیان کر لی گئے تیرے شکر گزار۔ جو آخری کلمہ رہتا ہے اس میں بڑی حفاظت اور بڑی نگاہ ہے۔ جس بیان کا کلمہ بیان کرنا اس کو نہ بولتے کرتے تیرا پاکوز میں بولتے آؤں جو میٹنگ 2 لائن دیکھ رہے ہیں، بس توبہ پر بھی نجات میں شفا پر بھالی پر تیرے نام عزت اور جلال کھانے کے بس کے ہم مانگا شروع سے اینڈ تک بڑی حفاظت اور بڑی نگاہ کرنا مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ اب میں دعوت دوں گی سسٹر انشا کو کہ وہ سامنے آئیں گی اور 7ویں کلمے کو بیان کریں گی۔ آپ سب کی بھرپور تعریف۔ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ مجھ سے پہلے 6 بہن بھائیوں نے کلمات کو بیان کیا اور خدا کے فضل سے خدا نے مجھے بھی موقع دیا تاکہ میں آپ سب کے سامنے 7ویں کلمے کو بیان کر سکوں۔ تو آئیں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے 7ویں کلمے کو دیکھیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور 46 آیت۔
मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत में हम देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से जो अल्फाज सादिक फरमाए। आए हम पढ़ते हैं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। इससे पहले कि हम कलमे के हकीकी मतन को समझे, हम जानेंगे कि इस कलमे का टाइम क्या था, ये किस वक्त बोला गया था। अगर हम देखें तो ये कलमा शाम के 3 बजे बोला गया था, और उस वक्त जब ये कलमा बोला गया था तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया था, और वो अंधेरा ख़त्म होने वाला था। लेकिन 3-4 घंटों के बाद सूरज भी गुरूब होने वाला था, और इसी के साथ ही यहूदियों का एक खास सबक शुरू होने वाला था, जिसकी वजह से ये वो सब काम जल्द ही ख़त्म करना चाहते थे जो सलीब पर था। अब हम देखेंगे कि कलमे की नौइयत क्या है। ये आखिरी कलमा है, और पहले और चौथे कलमे की तरह बाप से खिताब को जाहिर कर रहा है। ये तीनों चीज़ों को जाहिर करता है, यानी कि सपुर्दगी, तकमील और ऐलान। अव्वल सपुर्दगी यानी अपने आप को किसी के सिवा किसी के हवाले कर देने को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सारा काम जो बाप ने उसे करने को दिया था मुकम्मल करके अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया। अब हम जानेंगे कि सलीब पर मसीह की हालत क्या थी। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए 6 घंटे हो चुके थे। ज़रा सोचें, अगर सर में कांटों का ताज और पाँव और हाथों में की लगे हों तो क्या लम्हा होगा वो। तो खुदावंद यीशु मसीह को 6 घंटे गुजर चुके थे सलीब पर लटके हुए, और इस 7वें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का आखिरी सांस लेते हुए ये कलमे को बयान करते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे चंद लम्हे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से छठा कलमा बोला। ये कलमा जाहिर करता है कि जो फ़र्ज़ बाप की तरफ से मिला है वो पूरा करके जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने भेजे गए वापस जा रहे हैं। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह में बहुत तसल्लीबख्श, रूहानी तस्कीन, इत्मीनान और खुशी को जाहिर करता है, जिससे मसीह का बोझ हल्का हो जाता है। कि मैं ये कहूँगी कि जैसे एक जर्नैल जंग वापस अपने शहर लौट रहा हो और बड़ी खुशी महसूस करता है कि एक जर्नैल इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की एक फातेहमंद जर्नैल की मालिक था, जो अपने काम को पूरा करके जो बाप की तरफ से सपुर्द किया गया था वापस बाप की तरफ जा रहे थे। और फिर जब बाप के पास वापस जाते हैं तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को 3 इनाम मिले। आए हम देखते हैं कि वो 3 इनाम कौन से थे जो खुदावंद यीशु मसीह को बाप की तरफ मिले। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 2 बाब और उसकी 9 आयत के मुताबिक, तो मैं टाइम की कमी के बायस मैं आपको हवाले बता देती हूँ। पहला इसमें लिखा हुआ है इब्रानियों 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, और दूसरा मुकाशवा 3 बाब और उसकी 21 आयत, और जो तीसरा है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील उसका 18 बाब उसका 28 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है। ये तीनों अनाम जो खुदावंद यीशु मसीह को वापस अपने बाप के पास जाते हुए मिले थे, और थोड़ी सी मैं वजाहत के तौर पर बयान करूंगी, सादा लफ्ज़ों में मैं इसको बयान करूंगी
کہ پہلا انعام جو ہے وہ عزت اور جلال کا تھا، اور جو دوسرا انعام تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بٹھانا، اور تیسرا آسمان اور زمین کا کل اختیار مسیح کو دیا جانا۔ آج ہمارے پاس بھی لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، جو زندگی کی سانسیں دی ہیں، آج ہم اس زمین پر ہیں، کیا جب ہم اپنے باپ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ جو خدا نے ہمیں یہ دن دیے ہوئے ہیں، جو زندگی دی ہوئی ہے، ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں یوحنا 13 باب اور اس کی 43 آیت، آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 43 آیت۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 43 آیت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو انہوں نے ہمیں سکھایا، ایک نیا حکم دیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ لیکن آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی محبت رکھتے ہیں۔ ہم کون سی محبت رکھتے ہیں؟ ہم دنیا داری سے محبت رکھتے ہیں یا خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ یہ آج ہم نے جاننا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت، تو آئے میرے ساتھ نکالیں گے پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 15 آیت۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شکی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ آمین۔ یعنی کہ جو ابھی ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا ہے کہ ہمیں کون سی محبت رکھنی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، ہم دنیا داری کے کاموں سے محبت رکھتے ہیں، ہم انسانوں سے محبت رکھتے ہیں لالچ کے طور پر۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ خدا کا کلام سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر جسم کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا آنکھوں کی خواہش، اور تیسرا زندگی کی شیخی۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو 3 چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کے مطابق دیکھیں تو یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ابھی میں جو بتا رہی ہوں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر تو اپنا کام کر دیا، لیکن کیا ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس یہ لمحہ ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ ہم کون سی محبت رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں سے رکھ رہے ہیں، ہمیں جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو جسم کی خواہش ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ کپڑا جو کلام مقدس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے وہ ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ پیارا ہے، یا کوئی بال ہیئر سٹائل جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے کردار کو لے کر چلتے ہیں، بجائے یہ کہ جو خدا کا کلام بتاتا ہے۔
हम उसके मुताबिक चलें। आज हमें सोचने की ज़रूरत है हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम दुनियादारी की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने हर तरह से हमारा किरदार दुनियादारी के अंदर जा रहा है, तो याद रखें कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होंगे। एक वादा जब खुदावंद यीशु मसीह जाने वाले थे, तो एक वादा खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे की है कि मैं जाता हूँ अपने बाप के पास ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो हमें कहा, वो उन लोगों को कहा है जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक चल रहे हैं, जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। और लिखा हुआ है कि वही अब तक कायम रहेंगे। अब तक कायम कैसे रहेंगे? जब हम हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। एक तो हमारा एक मरना यहाँ पर है ज़मीन पर, और दूसरा मरना जब हम जिंदा होंगे, और वो लोग जो फिर भी जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे, वो दूसरा मरना। लेकिन आज हमें सोचने की ज़रूरत है हम क्या कर रहे हैं। हम क्या दूसरे मौत के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि हम जहन्नुम की आग में जलें? हमें अपने आप को तैयार करना है और सोचना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो ज़मीन पर जो काम किया, क्या हम उसकी मोहब्बत, जो खुदा ने अजीम मोहब्बत हमसे की है, हम उसको किस तरह से अदा कर रहे हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? क्या हम उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करते हैं ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और सोचेंगे। एक लम्हा के लिए हमने 7 कलमात को सुने जो खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी दर्दनाक हालत में बयान किए। सर में कांटों का ताज है, कील हाथों और पाँव पर कील लगे हुए हैं। लेकिन आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या आज हम इस काम को पूरा कर रहे हैं जो खुदा ने सलीब पर किया? क्या हम उसकी पाया तकमील कर रहे हैं उसके हुक्मों पर अमल करके? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस कलाम के लिए खुदा, आज के 7 सलीबी कलमात के लिए खुदा, जो तू इस सलीब पर हमारे लिए बयान किए कि हम ताकि हम भी खुदा हमेशा तेरी वफादारी में तुझसे मोहब्बत रखें, हम हमेशा दूसरों को माफ़ करेंगे। हो पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हमें तौफीक दे खुदा, ताकि हम सब आज जितनी जिंदगियों ने कलमात को बयान किया, उन सबको भी छू खुदावन और ज़्यादा बढ़कर दे खुदावन। और तमाम खुदावन पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे माहौल को, मीटिंग लीड करने वाली बहन को, प्रस्तिश वाली बहनों को, हर एक को पर तेरी बरकत को चाहती हूँ यहोवा पाक खुदा। और जितनी जाने आज इस जगह पे मौजूद है, सब पर तेरी बरकत को चाहती हूँ यहोवा पाक खुदावन। और मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यहोवा पाक खुदा, तो इन तमाम जानों को छू ले और ब्लेस कर दे खुदावन, ताकि आज की ये मीटिंग ब्लेसफुल मीटिंग हो खुदा, और 22 से बरकत हो खुदा। और खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने बड़ी रहनुमाई और बड़ी हिफाजत की। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा। तू सबको छूना और बड़ी बरकत देना यहोवा पाक खुदा। इन तमाम बच्चों को छूना खुदा। मीटिंग लीड करने वाली बहन पर भी तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदा, और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल को इस्तेमाल करना। सबको नाम बनाम छू और बड़ी बरकत देना यहोवा पाक खुदा। और खुदा, मैं मिन्नत करती हूँ खुदा, पूरे माहौल को खुदा, पूरी फिज़ा को, हर एक चीज़ को तेरे कंट्रोल में देती है यहोवा पाक खुदा। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने इबादत के शुरू से आखिरी हिस्से तक बड़ी रहनुमाई और बड़ी हिफाजत की खुदा। हर चीज़ को ए खुदा मुंतज़िम रखा। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है यहोवा पाक खुदा। तू बड़ी रहनुमाई और बड़ी हिफाजत कर खुदा। मांगते यीशु मसीह के नाम से। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है,